Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel. This video is a part of a podcast series where we'll try to bring in people from different B schools and their voices, basically, just to share their real experiences and insights. Today's discussion is a comparison between IFT Delhi, MDI, Gurgaon, and IIM Shillong. Joining us are Ashish Yadav from IFT Delhi and Gaurav Vats from MDI Gurgaon, and myself, Saurabh Mata from IIM Shillong. All of us are pass outs of 2025 only. We uh, just graduated from our respective colleges in March 2025 and maybe April 2025, depending upon the college scenario. So before we begin, I'll request both of our guests to introduce themselves. We'll start from Ashish. Hello everyone, my name is Ashish Yadav, and just to give you a brief about my background, so I firstly did my BTech in Mechanical Engineering from Delhi Technological University. Post that, I have worked with Hero MotoCorp for over 2 years, and following which I had joined IFT to pursue my MBA in International Business. Gaurav, now I would send the Yeah, mic to you. So hello everyone. I'm Gaurav Vats and I'm MDI 25 pass out and I have done BTech in Computer Science Engineering and then 2 years work experience as a data scientist in TCS. Thank you, Gaurav. Thank you, Ashish. So both of them are my friends only. Gaurav is from my coaching and Ashish is a fellow from my SIP. So we'll not, run around the bush now, and we'll directly jump to the questions. So my first question would be around how's the campus life and infrastructure in our respective colleges. We can start from Gaurav now, since as per the arrangement, we'll start. So talking about MDI Gurgaon, Gaurav, campus life and infrastructure. सो लास्ट ईयर से एमडीआई में काफी रिनोवेशन चल रहा है क्योंकि एमडीआई का जो कैंपस है काफी छोटा है। लेकिन है गुड़गांव के बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड है वो। लेकिन कैंपस क्योंकि छोटा है इसलिए काफी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उसका। कैंपस थोड़ा ओल्ड है क्योंकि ये अराउंड 70 60 70 का कॉलेज है। तो इसलिए अभी उसको काफी वर्टिकल अपग्रेडेशन किया जा रहा है क्योंकि उसमें इतनी एरिया है नहीं। तो अभी काफी थोड़ा केओस चला 1 2 साल में कंस्ट्रक्शन के कारण। लेकिन ओवरऑल कैंपस काफी पीसफुल है, लगता नहीं कि गुड़गांव के अंदर है। लेकिन फिर भी वहाँ पे मतलब अगर फौना देखा जाए एमडीआई का तो काफी अच्छा है और कैंपस भी काफी पीसफुल है वहाँ पर। गौरव, स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में एक्चुअली आई हर्ड कि वहाँ पर कुछ क्रिकेट कंपटीशन वगैरह भी होता है जिसमें एफटीवी वन पार्टिसिपेट करता है। हाँ, तो एमडीआई में रेगुलरली हर ईयर स्पोर्ट्स फेस्ट होता है जिसमें कॉलेजेस आईएफटी और जो भी पास के कॉलेजेस नॉर्थ के जैसे आईएम काशीपुर, आईएफटी, एक्सेलराई दिल्ली, ये सारे कॉलेजेस आते हैं हर साल पार्टिसिपेट करने और हम भी इनके कैंपस जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कुछ कुछ कोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कई बार जैसे बैडमिंटन का कोर्ट लिमिटेड है तो आप लोग आउटसोर्स कर लेते हैं, आसपास में बैडमिंटन कोर्ट हो जाता है। वैसे ही फुटबॉल क्रिकेट का वही सिस्टम रहता है। वॉलीबॉल का कोर्ट अपना है तो वहाँ मैचेस हो जाते हैं और इंडोर टेबल टेनिस वगैरह सारे इंडोर अवेलेबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आई थिंक वी कैन नाउ पास द बैटन टू आशीष. Yes, so coming on to IFT, IFT campus is a bit small. It's roughly it's roughly like spread around in 6 acres only. But the main point is it's in the central part of Delhi. So Delhi ke जिस part में you will find around that it is one of the premium areas, posh areas, and around it you will find lots of greeneries and forests. Like Sanjavan is nearby. So despite being in Delhi, it stays away from pollution. This is a good thing about our campus. Secondly, it's a small campus. Architecture is really good of that campus. It's a very old campus. But however, considering the number of students and intake that IFT has, comparatively, it's a bit smaller in size. And definitely, the campus should be a little bigger. IFT is at a disadvantage on it. Now, coming on to the sports facilities, facilities we do not have much in our campus. Like there are a bit of badminton court, like one badminton court is there, as far as I remember, and nothing else is over there. Apart from that, our hostels are nearby only, so because of which we have an advantage that we are very much interactive with our other classmates and other batchmates, maybe our juniors as well as our seniors. So this is a plus point that we have. So basically, Ashish, in terms of hostels, as far as I remember, I mean, since my brother is also from IFT, तो पहले ऐसा था कि उनके दो बेसिकली एक कैंपस मेन कैंपस चाहिए और हॉस्टल थोड़ा सा आई मीन नॉट मोर देन 100 200 मीटर्स पास में है, तो वो अभी भी Yes, सिचुएशन है या
कैंपस में ही है? Yes, the situation remains the same. Inside IFT, there are only two hostels. One is new ओके। hostel and the other one is old hostel. ओके। New hostel is completely for female candidates, whereas old hostel is for the second year male candidates. So those students who are male and and are in their first year, they have to stay outside campus. Like IFT has themselves booked some two facilities outside campus, which are within roughly you can say a perimeter of 200 meters itself. So they stay over there in those two buildings. So the first year junior, like the male candidates, stay outside campus. ओके। तो नाउ आई विल जंप ओवर टू आई एम शिलोंग इन दैट केस। आई टेक द परमिशन फ्रॉम यू इन दिस सिनेरियो। या चलो ठीक है, तो आई टॉक अबाउट आई एम शिलोंग। शिलोंग itself is a peaceful city being in मेघालय। तो ग्रीनरी फॉर ऑल दी फॉरेन फ्लोरा एंड फोना, मतलब वो सब बहुत अच्छा है और उसमें कोई डाउट ही नहीं है सच। मेन क्वेश्चन आता है जनरली स्टूडेंट्स का, जो अभी भी मैं जब मैंने गूगल फॉर्म फ्लोट किया था तो इट वाज अराउंड कि कैंपस का हॉस्टल बाइफरकेशन कैसा है, इज इट देयर आर टू कैंपसेस, ये सब के डाउट्स हैं। मोस्टली चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बट मैं आपको एक सिनेरियो बताने की कोशिश करता हूँ। तो वी आर हैविंग टू कैंपसेस, वन इज इन नोंगथमाई विच इज अ मयूरभंज पैलेस। तो किसी उड़ीसा के राजा का वो पैलेस हुआ करता था, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू पॉन्डर ऑन इन शिलोंग। एंड वहीं पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम took his last breath as well in Nongthamai campus, which is our older campus. अभी के लिए our new facility is being getting ready in Umsawali. So this is the one wherein we are having our admin block, our academic blocks and hostels. But as told by Ashish, तो इस केस में we share the same situation with IFT, but IFT के साथ I can say for sure उनके hostels बहुत पास हैं. It is not more than 100 meters. It is a walking distance in case Yeah. of IFT. But IM Shillong के केस में we need to travel by bus. तो अराउंड 30 मिनट्स का ट्रैवल रहता है, बट इट इज फॉर फर्स्ट ईयर्स। एंड फर्स्ट ईयर में आप लोग नोंगथमाई में रहोगे, एंड देन सेकेंड ईयर में आप लोगों को उमसावली कैंपस में ही रखा जाता है। उस टाइम पे आपको उमसावली के हॉस्टल्स दे दिए जाते हैं मोस्टली। इस ईयर जितने चांसेस हैं, देयर आर चांसेस कि वो सिनेरियो चेंज होगा और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर विल बी देयर इन द सेम कैंपस। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि दिस इज समथिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इवन आई कांट कमेंट ऑन दिस। और इसके अलावा बस राइड generally comes with a challenge in mind कि we have to travel for 30 minutes each day for one side, which becomes 1 hour going and coming back. But the point is कि initially for I would say around a month it would definitely be a challenge हमारे लिए भी था, because generally starting में is the only time when seniors give the assignments and they basically prepare your personality for the upcoming days. तो उस टाइम पे इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज कि उस टाइम पे ना ऐसा हो जाता है कि हाँ यार आप लोग आधा आधा घंटा एक साइड का ट्रैवल कर रहे हो, बट इवेंचुअली उस टाइम पे जो आपकी फ्रेंडशिप्स बनती है ना बस में, दोज आर द बेस्ट फ्रेंडशिप्स आई वुड से, कि जो अभी तक मेरे साथ भी चल रही हैं वो फर्स्ट ईयर के साथ। क्योंकि उस टाइम पे आप सारे इकट्ठे रैंट कर रहे होते हो बस के अंदर कि यार क्यों बस में जा रहे हैं, बट ठीक है, ये दिस इज अ ग्रंट विच समवन हैज टू फेस सिंस नया कैंपस बन रहा है एंड दैट कैंपस इज more than 100 acres. उसके अंदर in terms of sports facility we have a separate volleyball court, we have basketball court, we have football field, we have cricket के लिए separate pitches. इसके अलावा क्रिकेट का pitch is not fully furnished, लेकिन हाँ वो भी अभी हो रहा है रेडी और काफी अच्छा फैसिलिटी है वो भी। उसके अलावा बैडमिंटन के लिए वी हैव टू सेपरेट कोर्ट्स। जिम का फैसिलिटी अभी भी रेडी हुआ, और आई कैन से फॉर श्योर कि जितने भी अच्छे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं दे हैव प्रोवाइडेड ऑल दोज इक्विपमेंट्स देयर इन द जिम। इसके अलावा अगर मैं जाता हूँ फूड के लिए, जनरली शिलोंग को लेके लोगों के माइंड में एक होता है कि यार वहाँ ज्यादातर नॉन वेज मिलता है। तो आई कैन से फॉर श्योर फूड का क्वालिटी इज वेरी गुड इन कैंपस। यस इट बिकम्स मोनोटोनस, इसमें मुझे लगता है हम तीनों ही एग्री करेंगे, हॉस्टल का खाना एक टाइम के बाद मोनोटोनस हो जाता है। तो हम वैसे बोर हो जाते हैं खाने से कि हाँ हर हफ्ते खाना रिपीट तो होता ही है मंथ के हिसाब से। तो वो एक सिचुएशन रहती है, बट इन टर्म्स ऑफ फूड क्वालिटी एंड टेस्ट इट इज वेरी गुड। इवन हमारे यहाँ पे जैन फूड भी सेपरेट बनता है दोनों कैंपसेस में, कि जैन फूड के लिए भी एक अलग से सेम रहता है। हमारे यहाँ और भी जैन फूड से अलग से रहता है। वही तो, ये चीज कॉलेज अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो in terms of campus life and infrastructure, I think I've covered all of it. And yes, one more thing in terms of sports, which is a golf club. So we have Asia's largest natural golf club in Shillong, and that is under Shillong Club. We are having a tie-up with golf club as well, with the same golf club. तो अगर आपको golf सीखना है, generally after years of becoming a partner or something, तो आप golf सीखना start कर सकते हो with the help of sports committee in our college. So this was the first question I would say.
कमिंग टू दिस, अगर आपको किसी को ऐड करना है गौरव आशीष, तो आप इस पे ऐड कर सकते हो। कुछ आपको लगता है कि आप ऐड करना चाहो IFT और MDA के लिए? नहीं, आई वो डोंट थिंक 30 मिनट का। या हाँ, फ्रॉम थर्टी आईएफटी मिनट साइड आई वो डोंट बस थिंक वाला तो मेरे को, अरे क्या चीज शूटिंग कर दी हाँ। अच्छा अच्छा। थोड़ा। लाइक हाँ। फ्रॉम IFT साइड आई डोंट थिंक, यू खाने के बारे में सुनने के बाद आई हैव मच टू से, बिकॉज हमारे कैंपस में इट्स नथिंग लाइक दैट। यू हैव द सेम फूड, वेज एंड नॉन वेज, नो जैन फूड इज केप्ट सेपरेटली, एंड दोज टू लाइक varieties are also not that great. So yeah, you तो can survive but you cannot thrive. मैंने ये चीज मेंशन नहीं करती, बट हाँ मेरे को हिमांशु ने ये चीज बताई थी, आशीष फ्रॉम IFT ओनली, कि ये इशू है। बट ठीक है, Yeah. आई थिंक हॉस्टल्स के साथ ना ये इशू रहता ही है इन टर्म्स ऑफ एनी कॉलेज, आई हाँ वुड से। एक पॉइंट के बाद ना हॉस्टल का खाना किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, वो भले ही फिर कहीं पे भी हो। बट ठीक है, वी हैव ऑप्शंस अराउंड। गौरव, चलें सेकंड क्वेश्चन पे फिर हम। मेस का खाना तो हाँ बिल्कुल, हाँ, वो तो बोलो बात है बोलो। नॉर्मल, स्टार्टिंग में सबको 1 मंथ बिल्कुल सही लगता है, उसके बाद तो बिल्कुल खराब है, तो बिल्कुल खाता ही नहीं था उस टाइम तो फिर मेस में। लेकिन कभी कभी, कभी कभी स्पेशल लंच डिनर होते हैं तो वो तो बिल्कुल हम्म। अच्छा होता है, वो तो खाती है। हाँ। जैन फूड अलग से है, वेज नॉन वेज सारे फैसिलिटीज। और मेस का हाइजीन भी अच्छा है कंपेरेटिवली। और बस वो, बस वाली बात मैं कह रहा था कि जो 30 मिनट्स का ट्रैवल रहता है, तो मैंने तो कई बार, जैसे मैं अराउंड, अगर 8:45 क्लास है तो मैं 8:35 उठता था, तो मेरा उसमें ब्रेकफास्ट क्लास सब हो जाता था उतने में। हमारे यहाँ पे अगर हमें पता है कि 9 बजे पहुंचना है, तो हम लोग 7:30 बजे अपना स्टार्ट कर देते हैं सब कुछ। 7:30 भी खाना पीना नींद स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। नींद में बच्चे क्लास पहुंचे हुए हैं बिल्कुल। बसेस में आई रिमेम्बर, हम लोग एक दूसरे के कंधे पे सर रख के सो रहे होते थे, तो किसी के तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गए कंधे पे सर रख के सोते सोते, तो किसी के अच्छे दोस्त बन गए उस पीरियड में। तो बिल्कुल, ठीक है। जैसे छोटे पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे लोग बस में, वो वाला फील आता होगा। हाँ लेकिन ठीक है, वो चीज़ एक चैलेंज है, बट इट इज़ अ फील गुड फैक्टर, क्योंकि उसमें ना हम शिलोंग अच्छे से देख लेते हैं। बट हाँ, मैं उसको एज सच डिफेंड नहीं करूंगा कि शिलोंग में वो इशू नहीं। अभी के लिए वो इशू है एक, कि 30 मिनट्स का ट्रैवल है, और ऑनेस्टली लोगों की नींद पूरी नहीं होती और लोग बस में बैठे होते हैं उस टाइम पे। बट आई थिंक वो ओवर द पीरियड इंप्रूव कर गया है, कि जैसे जैसे कॉलेज फैसिलिटीज अपनी ट्रांसफर कर रहा है, उस हिसाब से वो चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं, या तो इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर तक। जे ग्रंट अब ये है कि लास्ट एक आधा बैच होगा जो फेस करेगा, बाकी मोस्टली अब सॉर्टेड सॉर्टेड ही रहेगा इस रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज योर बैच साइज एंड हाउ डज इट इफेक्ट द अपॉर्चुनिटीज लाइक प्लेसमेंट्स और कॉम्पिटिशंस? गौरव। सो बैच साइज अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, अराउंड 10% लास्ट ईयर में से। तो हमारे बैच साइज अराउंड 360, 300, 315 पीजीडीएम है, और 120 HR, एंड 120 इंटरनेशनल बिजनेस आईबी ब्रांच का। ये मेन है। बाकी ऑनलाइन और बीएम का भी टॉपिक नहीं रखते हैं, ये तो नॉर्मल टॉप पीजीडीएम की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे इंक्रीज हुए हैं कुछ लास्ट ईयर से। और अभी जैसे 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 बैच साइज बढ़ता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आते ही कंपनी लिमिटेड, जैसे कंपनीज भी लिमिटेड है। लेकिन एक फायदा ये होता है बैच साइज ज्यादा होने का, कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, और कंपनी को ये काफी अट्रैक्टिव लगता है कि हमारे पास एक बड़ा पूल सही है। तो और लोग देखते हैं कि फाइनेंस में भी काफी लोग हैं, आईटी, कंसल्टिंग, तो उनके पास एक मेजर पूल के कारण उनके रहता है कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें बच्चे मिलेंगे ऑब्वियसली। तो कंपनीज का भी इस बात को लिए अवॉइड नहीं करती कि इतना बैच साइज है, तो कंपनीज के लिए तो सही है। लेकिन ये कंपटीशन बढ़ जाता है बच्चों के बीच में, तो एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी इतनी कंपनीज आ रही हैं कि प्लेसमेंट अच्छा चल रहा है। तो बैच साइज है, लेकिन बैच साइज से उतनी दिक्कत नहीं हो रही है अभी तो एमडीआई को। आशीष। तो आईएफटी में ऐसा है कि वी हैव टू कैंपस, दिल्ली एंड कोलकाता। सो ऑन वन हैंड इफ वी सी, तो जो छोटा पैसा इज द इट्स कंसिडर्ड गुड की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत लिमिटेड कंपटीशन है कंसिडरिंग दैट। सो वी हैव 215 IB बैच, whereas we have 15 BA batch as well, roughly 50। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग आवर टाइम, ड्यूरिंग 23 25 का फर्स्ट बैच है बीए का। सो दिस कम्स अराउंड 300, एंड सिमिलरली कोलकाता में भी है। एंड वी हैव अ पूल प्लेसमेंट प्रोसेस टिल नाउ। So even though IB में 250 ही बच्चे हैं, but overall if you see, we also cater to roughly 600 650 students. So it becomes a similar scenario कि the more the number of students, the more the competition for companies. But however, from the company's point of view, it's more lucrative. But at the same time देखा जाए तो it also creates a bit of rough patch between the students, because there are limited number of opportunities. So that's a similar scenario, like similar to MDI. We also have the same scenario.
तो अभी आईबी का और पीजीडीएम का बेसिकली कैटरिंग सेम पीसी कर रही है ऐसा? हाँ, सेम पीसी है। वी हैव आईबीपीसी, मतलब एक टोटल पूरा जो पीसी है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द फोर डिफरेंट ब्रांचेस, दिल्ली हम्म। आईबी, कोलकाता आईबी, दिल्ली बीए, एंड सिमिलर नेक्स्ट ईयर अगर कोलकाता बीए होता है तो फ्रॉम देयर देयर एज वेल देयर विल बी पीपल। बट हाउएवर देयर आर सम टॉक्स गोइंग ऑन कि थोड़ा सा बैचेस को सेपरेट किया जाए। देयर हम्म। आर सम थिंग्स गोइंग ऑन इन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बट नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड टिल नाउ। ओके, ठीक है। एक्सेल के एंड साथ भी ऐसे ही है, दिल्ली और एक्सेल का, दिल्ली और वो जमशेदपुर का है, उसका भी हम्म। पूल्ड है। और प्लेसमेंट कमिटी भी पूल्ड है। लेकिन हमारे मतलब एमडीआई में मुर्शिदाबाद का बिल्कुल अलग चलता है, और गुड़गांव का अलग। पूल्ड इन केस ऑफ एचआर आईबी और पीजीडीएम वाले पूल्ड है, लेकिन मुर्शिदाबाद से कोई पूल्ड नहीं है, मुर्शिदाबाद का अलग चलता है। तो गौरव, तुम्हारे यहाँ पे फाइनल प्लेसमेंट्स में पीजीडीएम और आईबी आई थिंक साथ होता है ना? दोनों बैठते हैं, हाँ साथ होता है, आईबी का उसमें एचआर का इंटर्नशिप तक सेपरेट नहीं रहता रहता है। है। हम्म। नहीं, एचआर भी साथ रहता है, लेकिन एचआर प्रोफाइल के लिए जो आती है उसके लिए एचआर वाले होते हैं, लेकिन प्लेसमेंट ओके। कमिटी सेम ओके, सो इन दैट केस प्लेसमेंट कमिटी को अराउंड रफली 600 का एक बैच देखना है पूरा, इंक्लूडिंग ऑल द है। थ्री ब्रांचेस। ठीक है। यस। सो नाउ आई टॉक अबाउट आई एम शिलोंग फॉर प्लेसमेंट्स। तो आई स्टार्ट फ्रॉम माई सीनियर्स, क्योंकि अभी मैं तीन बैचेस देख कर आया जैसे, एंड सेम इज विद ऑल ऑफ अस, हम तीनों के साथ ही सेम सिचुएशन है। तो हमारे सीनियर्स का बैच था, इट वाज अराउंड 300, कि वो 280 295 के करीब थे, तो 300 के करीब उनका बैच था। आर बैच वाज अराउंड 380, एंड आर जूनियर बैच इज ऑल्सो अराउंड 380 380 390 ish, विच इज मतलब द टारगेट नंबर इज 400, लेकिन करते कराते 380 390 बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए बेसिकली आए, क्योंकि लास्ट में जैसे वेट लिस्ट मूवमेंट होगा और सब कुछ होगा, तो करते कराते यही 380 390 बच्चे कॉलेज में रह जाते हैं। तो इनिशियली व्हेन दैट स्टेप वाज टेकन कि हमें 400 का बैच साइज उन्होंने इंक्रीज करा, इट इज बेसिकली 100 का बैच साइज इंक्रीज करा, एंड 400 पे हम आए फ्रॉम 300, विच इज आर सीनियर बैच टू अस। तो उस केस में 33% इंक्रीज था नंबर्स में, एंड इट वाज अ चैलेंज इन इनिशियल डेज, क्योंकि जब आप 280 से 380 पे जा रहे हो नंबर्स में, एंड प्लेसमेंट कमेटी आपकी वही है, रिसोर्सेज आपके पास वही हैं, तो कहीं ना कहीं देखो चैलेंज तो आता ही है। तो वो इनिशियल फेज में हमें वो सेटबैक फेस करना पड़ा था। इन सेटबैक आई वुड से इट वाज अ टर्बुलेंस, कि उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था सिनेरियो एसआईपीस के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए। इवेंचुअली हमारा बैच निकला, हमने फाइनल प्लेसमेंट्स जब तक आए, पीसी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर 400, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर पीसी उस टाइम पे उनके लिए तो एक नहीं आता कि 400 का बैच साइज आया, बट हमारी पीसी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अस फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फाइनल प्लेसमेंट्स वर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ the batch size, since 400 का batch size was a good enough batch size, but things were very smooth for finals. अब इसके बाद जूनियर बैच साइज भी था, तो कॉलेज टुक अ डिसीजन कि उन्होंने उनको भी 380 और 400 के आसपास ही रखा है। तो उस केस में दो बैच साइज 400 के कैटर कर चुका है कॉलेज अभी तक। तो इट मेक्स कि हाँ यार, उनको दो बार तो उनको एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया 400 बच्चे कैटर करने का। थर्ड बैच इज कमिंग, विच विल बी द अपकमिंग बैच फॉर 2025 2027। इस बैच के लिए भी एज पर दी रूमर्स, जितना मैंने सुना है, वो 380 और 390 और 400 की ही रेंज रहने वाली है, 380 टू 400 की। उसमें इस साल भी कॉलेज कुछ चेंज नहीं कर रहा है, विच इज द मोस्ट प्रोबेबल चांस। और जितना मुझे भी पता है, मतलब ऑनेस्टली सेइंग, जितनी मेरी भी बात हुई है, इतना ही रहने वाला है। तो इस केस में आई थिंक बैच साइज बड़ा था, इनिशियल इश्यूज आए थे, बट कमिंग टू द सेम पॉइंट विच गौरव एंड आशीष सेड, बिगर द बैच साइज बेटर दी पूल। तो कॉलेज ने एक स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अच्छी चली थी, वो ये किया था कि फीमेल इंटेक हमारा बढ़ाया था कॉलेज ने। तो 400 में रफली 50 51% आर फीमेल। तो उस केस में कॉलेज को हेल्प मिली है इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक्सेंचर इज वन ऑफ द कंपनीज, दे आर एमिंग फॉर 50% जेंडर रेशो। तो उस केस में देयर आर कंपनीज हु आर एमिंग फॉर बिग नंबर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो उस वजह से कॉलेज के लिए भी काफी हद तक ईजी होती हैं चीजें, कि आप नई कंपनीज और ला सकते हो कैंपस पे जो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। एंड ऑब्वियसली वो हमारा जो पूल था मेल का 200 का, उसको तो वो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो उतना ही पहले भी था, क्योंकि पहले परसेंटेज ऑफ मेल वाज अराउंड 60 70, तो घूम फिर के नंबर वही आ गया सेम मेल्स के लिए। तो दिस हैज बीन दी स्ट्रैटेजी फॉर आई एम शिलोंग, अभी तक वो जो करते आए हैं। और इसके अलावा अबाउट कंपटीशन, एक अच्छा कंपटीशन रहेगा आप सबके लिए ही, जो भी आई एम शिलोंग ज्वाइन करने वाले हो। क्योंकि जब 400 का बैच साइज है, तो वो 400 का बैच साइज मैं आपको खाली पीजीडीएम का बता रहा हूँ, इसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई कोर्स चलता नहीं है सच। आईपीएम इस साल आ रहा है, बट आईपीएम का ऑब्वियसली
5 साल का कोर्स है, तो उसका तो कोई कंसिडरेशन कहीं से कहीं तक होने नहीं वाला साथ में, वो एक अलग ही रहेगी कहानी। तो इसका अभी तक जितना हमें पता है, पीसी अलग रहेगी हमारे बैच के, और उनका पूरा अलग सिस्टम चलने वाला है। तो दिस इज व्हाट आई मीन फॉर आई एम शिलोंग इज अराउंड बैच साइज एंड प्लेसमेंट्स का सिनारियो। We'll go to the third question. If I mean, I'm assuming Gaurav and Ashish, if you would like to add something to this. नथिंग No, I फ्रॉम have माय साइड। nothing from my side. Okay. So, does location impact to exposure of placements? Gaurav, Ashish, both of you, starting with Gaurav. ओके। सो या लोकेशन का फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर देखा जाए कि आजकल जैसे ऑनलाइन इंटरव्यूज काफी होने लगी हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैंने अभी नोटिस किया इस ईयर से कि वापस से वॉक इन इंटरव्यू और इस पे कंपनीज फोकस कर रही हैं काफी। तो जितना हमारे हमारे एसआईपीज में कुछ कुछ ऑनलाइन हो गए थे, लेकिन हम मैंने देखा कि जूनियर बैचेस में एसआईपीज भी ऑलमोस्ट सारे ऑफलाइन ही हो रहे हैं। तो फर्क ये पड़ता है इसमें कि कई सारे जो स्टार्टअप या नई ब्लूमिंग कंपनीज हैं वो सब ज्यादा आ सकती है। अगर गुड़गांव की कोई स्टार्टअप कंपनियां हैं तो वो प्रिफर करेगी पहले एमडीआई गुड़गांव या आईएफटी दिल्ली, या फिर कोई भी जो अराउंड दिल्ली उनके एरिया के अराउंड कॉमन है, और मुंबई भी अवॉइड करेगी। तो इस पे फर्क पड़ता है ना, कि बड़े बड़े जैसे कंपनी एक्सेंचर ये सब है, डेलॉयट है, इन सबको तो क्या ही, इनको तो पूल कैंपस करना है तो ये तो शिलोंग भी जा सकते हैं, तो शिलोंग जाके ऑफलाइन कैंपस भी, ऑफलाइन इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो इनके लिए कोई इशू नहीं है। बस छोटी छोटी कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज, छोटी प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कंपनीज, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये सारी कंपनियां आसानी से आ जाती है कैंपस पर। Okay. इसके अलावा गौरव कुछ और ऐड करना है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, मतलब आई थिंक। और अगर लोकेशन का अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से करें तो नहीं, लेकिन ऐसे बाकी अपना कैंपस लाइफ और सिटी लाइफ में काफी हंड्रेड अच्छा रहता परसेंट है वो लोग इम्प्रूव का, करेगी। मतलब वीकेंड अधिकतर वही कर जाता है। हम्म। और कनेक्टिविटी भी लोगों का अच्छा है घर के लिए वीकेंड यहाँ वीकेंड से। का अधिकतर वहीं पड़े रहते हैं, आशीष सुन लो। वीकेंड ठीक है। वो हर तो जगह वही हाल है, आईएफटी का ही वही सेम ही है सिनेरियो। गुड़गांव हम्म, ज्यादा दूर नहीं है, हम्म, 20-25 मिनट लगते हैं अगर तुम लोग शाम को कभी हम लोग निकलते हैं गुड़गांव तो। और मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड्स पे हम भी गुड़गांव में ही मिलते हैं। और प्लेसमेंट्स के लिए कहाँ पे मिलते हो लोकेशन के हिसाब से? वो अब कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए है। कंपनी के ऊपर है, वो कैंपस देख रहा है। हम्म, तो मोस्ट मतलब प्रोबेबली तो फायदा हम्म, रहता है अगर दिल्ली हम्म, में वो कंपनी या फिर गुड़गांव साइड रहती है तो उसके से फायदा रहता है कि एसआईपीज या फिर प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज मेन होते हैं। अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम भी आ रही है तो दे प्रेफर की गेस्ट लेक्चर के लिए आए, उन सब के लिए आए। हम्म, इन दैट केस इज बेटर फॉर देम कि जो पास में कॉलेज है उनमें वो चले जाएं। सो इन दैट केस हेल्प्स कि एमडीआई फिर आईएफटी में आ जाओ एंड देन दे कंडक्ट जीएल्स एंड simultaneously after following which they come here for placements as well. हम्म, Whereas some companies also hold online interviews, जो बड़ी companies हैं they mostly don't care about visiting campuses, although if it's close by their office they definitely do that. But उनको online में कोई problem नहीं है। Most of the time they'll have like telephonic interviews and video like video interviews as well. So campus का एक फायदा है but it's not like sole सब चीज़ें उसी पे हम्म, डिपेंड करेंगी। सही बात। मगर हाँ यार, मेरे को तुम्हारा कैंपस पसंद बहुत है, स्पेशली आईएफटी का। मैं गौरव अभी लास्ट टाइम गया था, लास्ट ईयर गया था, और मैं वहाँ पे रहा भी था। तुम्हारे हॉस्टल में स्नीक इन किया था मैंने। तो वहाँ पर स्नीक इन अच्छा। मैंने अपने ब्रदर के साथ ही किया था। लेकिन बहुत ही प्यारा कैंपस है, मतलब छोटा सा कैंपस है, दो वी से कि हाँ यार छोटा कैंपस है, बट छोटे कैंपस के साथ में एक बेनिफिट बहुत है कि आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हो। और हम्म। बड़े कैंपस में उतने कनेक्शंस, मतलब ऐसा नहीं है बनते नहीं है, बट छोटे कैंपस में कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं। वो और वो कनेक्शंस ना, वो खाली ये नहीं है कि आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, जनरली वो रिलेशनशिप्स बनते हैं अच्छे, एक कि अच्छे दोस्त और एक लॉन्ग टाइम वाली फ्रेंडशिप्स बनती हैं। खैर वो तो हमारे यहाँ पे भी बनी है लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप्स, भले ही कैंपस बड़ा है। अभी आशीष ने गेस्ट नहीं यहाँ लेक्चर पे बोला तो एक्चुअली उससे याद है हम्म, कि इतना इतना ज्यादा हमारे कॉलेज में कभी कभी गेस्ट लेक्चर और प्री प्लेसमेंट टॉक और इंसेंडो हो जाता था। अगर जैसे हम देखते थे कि हमारा बहुत कल क्लासेस नहीं है, तो भाई पक्का है कि कल प्री प्लेसमेंट टॉक लगने वाली है या फिर इंसेंडो हाँ। लगेगा, तो जाके ऑडिटोरियम में बैठना पड़ जाएगा कंपनीज का। तो ये तो एक मुझे कभी कभी बहुत अजीब लगता था। क्योंकि इनफैक्ट बहुत रेयरली ईजी है होता था बनाना। कि सैटरडे संडेज हमें ऑफ मिलता होगा फर्स्ट ईयर में। हर लगभग सैटरडे संडेज को हम्म, जो हाँ, कॉर्पोरेट्स के यही। सीनियर लोग होते हैं फ्री रहते हैं, दे यूजुअली कम टू कैंपस फॉर जीएल्स। एंड कैंपस से आता है, देयर इज वन मोर थिंग इफ यू वांट, देयर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब व्हिच विल टेल यू अबाउट आईएफटी कैंपस। सो 1960s का अमंग्स द बेस्ट कैंपस या बेस्ट आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने डिजाइन किया था कैंपस। हम्म, हर एक चीज के पीछे क्या रीजनिंग थी वो सब है यूट्यूब पे अवेलेबल है, वीडियोस आईएफटी के। तो हम्म, आप वो देख सकते हैं, कैंपस तब पता लगेगा क्यों इतना सुंदर है। हम्म।
मतलब इस पे तो मैं 100% मैं भी कहूंगा कि वो वीडियो देख लो यार, मैंने देखी नहीं, मैं भी देख लूंगा क्योंकि मैं तो अंदर से कैंपस देख रहा हूँ, जनरली बहुत प्यारा कैंपस है। हाँ मतलब तो एक हिस्ट्री है लोकेशन। उसकी पूरी। हम्म। ठीक है, तो लोकेशन पे मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो लोकेशन का देखो यार, इम्पैक्ट 100%, इवन आई एग्री। IIFT दिल्ली में है, MDI गुड़गांव में है, दे आर वेरी क्लोज। आई मीन आई वुड से कि इतना क्लोज विसिनिटी में है सारी कंपनीज के साथ, बीट गुड़गांव बीट नोएडा, कहीं से भी आप जा सकते हो, आ सकते हो, बुला सकते हो, खुद जा सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं वो PC में से किसी को रीच आउट करना है उस टाइम पे बहुत हेल्प करता है, कि अगर आपको जाके ही बात करने को वो बोल देंगे नहीं जी हम फेस टू फेस ही मिलेंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मुझे लगता है, इट कैन बी अ बायस ऑल्सो, बट ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो 2020 के बाद, कोविड के बाद, इफ आई टॉक अबाउट अ सिनेरियो, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन जा चुकी हैं। तो जितना मैं भी अभी नोटिस कर कर आया, दो शिलोंग के साथ ये एक इशू है कि हम आउटस्कर्ट्स में हैं, और चैलेंज रहता है कि PC के लिए भी ये चैलेंज है कि अगर कभी उनको जाके रीच आउट करना है किसी कंपनी को फेस टू फेस, तो आपको 2 दिन चाहिए जाने के लिए। और IIFT और MDI के केस में वैसा नहीं है कि आप जनरली 2 4 5 घंटे में पहुंच सकते हो, इससे ज्यादा का आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमारे केस में हमें प्लानिंग पूरी करके चलनी पड़ती है, अगर हमें बुलाना है तब भी और जाना है तब भी। बट मोस्टली जितना सिनेरियो मैं देख कर आया, फाइनल्स में भी जब मैं बैठा हूँ, तो जितनी भी कंपनी आई, आई वुड से 95% और 90% चलो, वर द कंपनीज हु वर कमिंग ऑनलाइन, कि सबके प्रोसेस ऑनलाइन थे। तो एज सच हमें कभी ना इस चीज का चैलेंज लगा नहीं, ऑनेस्टली बताऊं तो, कि हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार कोई कंपनी हम मिस आउट कर रहे हैं उस केस में। क्योंकि मोस्टली हम तीनों के कॉलेजेस की जो भी कंपनीज हैं हमारी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में लिखी हुई हैं, एंड ऑलमोस्ट दे आर सेम, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि लोकेशन मैटर नहीं करती, लोकेशन मैटर करती है। थोड़ा बहुत तो देखो इस चीज से फर्क पड़ता है, बट अब साइड बाय साइड आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ कोഴിക്കোड। कोഴിക്കोड का कैंपस भी इज, आई मीन दे आर इन सम आउटस्कर्ट्स एरिया ऑफ केरला, बट समहाउ दे हैव डन दैट ग्रेट कि आज के डेट में वी आर कंपेयरिंग कोഴിकोड विद, एट टाइम्स विद कैलकाटा, कि कभी कभी कंपेयर किया जाता है कि हाँ यार कैलकाटा के कितना अच्छा चल रहा है, दो कोഴിकोड स्टैंड्स कोഴിकोड, लखनऊ तक कंपेयर करते हैं, कैलकाटा तक जाते हैं, बट दे हैव मेड अ नेम इन दिस, IIM का रैंकिंग लिस्ट, कि हाँ यार हम वहां तक जाने को भी रेडी हैं, जबकि वो इतना ज्यादा बाहर। तो मुझे लगता है कि शिलोंग इज ट्राइंग देयर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें कभी उस चीज का चैलेंज लगा नहीं है। बट दिस कैन बी द ऑडियंस कॉल, कि उनको कैसा लगता है इस पे, वो आप अपना टेक खुद बना सकते हो। बट ऑनलाइन हैज बीन द थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मुझे लगता है कि उससे इतना इशू नहीं आते हैं। गौरव, आशीष, आई थिंक यू वुड ऑल्सो एग्री ऑन दिस। या एब्सोल्युटली। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, how are immersion programs or industrial visits in all of the three colleges, Gaurav? इंडिया में अभी कोई इमर्शन प्रोग्राम नहीं है, और इंडस्ट्रियल विजिट भी नहीं है, बहुत लिमिटेड है। ज्यादातर एमडीआई में टेस्कॉम्स और ये सब पे ज्यादा फोकस रहता है। और फेस्ट काफी, मतलब हर महीने तो कुछ ना कुछ फेस्ट रहता है। और पीपीटीज जो मैंने बताया था, प्री प्लेसमेंट टॉक्स, गेस्ट लेक्चर, इंसेंडोज, ये सब बहुत होता रहता है। लेकिन कैंपस एक्सपीरियंस जो वो बोला मैंने कि इंडस्ट्रियल विजिट, ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक। आशीष। सो आईएफटी में भी इंडस्ट्रियल विजिट्स एज सच नहीं है, बट क्योंकि हमारा ट्रेड कॉलेज है सो वी डू हैव अ पोर्ट विजिट, हम्म। जहाँ पे देर आर लाइक आईएफटी अफिल मतलब उनका टाई अप है विद वेरियस पोर्ट्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। So if so मतलब हमें we have to opt whether you want to opt for a domestic port or you want to opt for an international port. And similarly, roughly it goes around a week, जहाँ पे we go to our respective ports, we see what all processes are taking place at port. So जितना वहाँ से सीख सकते हैं we learn it from there. And similarly, we after we come back, we have to submit a port visit report as well. And apart from that, we have a social awareness program. We call it SAP, जिसमें हम लोग we have, for 15 days we are assigned a particular NGO and we have to work with an NGO to get a feeling कि socially अगर काम करना है, how to become socially responsible, और एक जो strengthen होती है सोसाइटी के मतलब तरफ जो feelings रहती है, it strengthens that. So these are two things. Otherwise, fest is definitely there. IFT का खुद का अपना fest होता है. Definitely, I don't think it's as grand as MDI's or IIM Shillong's, but it is something. Okay. और आशीष, इसमें जो तुमने बताया तुम्हारा इमर्शन प्रोग्राम बेसिकली पोर्ट विजिट्स हैं, तो उस केस में एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, कॉलेज या स्टूडेंट्स नहीं नहीं, इंडिविजुअली? पोर्ट विजिट का
पूरा एक्सपेंस इंडिविजुअल को बियर करना पड़ता है, एंड ओके। इट्स रफली लाइक इनफैक्ट पूरा प्रोसेस वीजा हम्म। में टू सम एक्सटेंट कॉलेज डज प्रोवाइड सम हेल्प, हम्म। but otherwise all the expenses, bookings, everything the student have to do their own. हम्म। In some cases to मतलब college थोड़ा help कर देता है. For example, if a student is all the students are staying in a particular locality, so हम्म। a bus service might be operated and paid by the college, which will take the students from that particular locality to the port. ओके। So just थोड़ी बहुत बीच में help रहती है. Otherwise, roughly if you say expenses also, I think we have a question. We'll talk about that in some later part. ओके, श्योर। So about CIP, the Community Immersion Program in IIM Shillong, I'll carry it forward there. So recently they started CIP in our campus. Our seniors were the first batch, I think, or maybe their seniors were the first batch. This is something which I'm not sure about, but yes, it is something which is going on. तो CIP में हमारे यहाँ पे ऐसा रहता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमें एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया जाता है 10 दिन के लिए। तो उस 10 दिन में हमें नॉर्थ ईस्ट में इट कैन बी नागालैंड, इट कैन बी त्रिपुरा, इट कैन बी मेघालय, इट कैन बी एनी स्टेट एंड एनी सिटी इन दैट स्टेट। तो उसमें कुछ बिजनेसेस कॉलेज देख के रखता है और वहां पर हमें भेजा जाता है। तो उस केस में 10 दिन के लिए हम उस बिजनेस के एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। हम अपना अकोमोडेशन ले लेते हैं एंड दिस इज समथिंग विच कॉलेज बियर्स। हमें इंडिविजुअली पैसे दिए जाते हैं और वो हर साल चेंज होते हैं, तो इसलिए मैं उस पर कुछ नंबर नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। हर साल वो चेंज करते हैं, बट इट इज अ डिसेंट इनफ अमाउंट फॉर अ सिंगल पर्सन। और 6 से 7 लोगों की टीम बनती है तो ओवरऑल बहुत अच्छा अमाउंट बन जाता है। तो वो हमें दिया जाता है और वो 10 दिन तक जो एक्सपोजर मिलता है सीआईपी का इज ग्रेट। उसके अंदर वी नीड टू सॉल्व अ लाइव बिजनेस केस। तो वहां पर आपको ये रहता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं काजीरंगा गया था एंड काजीरंगा में देर इज अ बिजनेस अराउंड बैम्बू। तो वो बैम्बू से टेबल्स बना रहे हैं, बॉटल्स बना रहे हैं एंड ऑल। तो उनको ऑनलाइन जाना था, तो दिस इज समथिंग विच वी वर्कड अपॉन। ऑनलाइन कैसे लेके जाना और उसके बाद उनके मार्केट को कैसे बढ़ाना है, कैसे मार्केट को टारगेट करना है, वो 10 दिन के लिए हम 7 जने मिलके। और वो 7 जने भी आपको खुद ही चूज करने होते हैं। तो इट इज मोस्टली अबाउट योर फ्रेंड्स ओनली, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टीम बना के जाते हो 10 दिन और अच्छा खासा एक एंजॉय कर कर आते हो नॉर्थ ईस्ट में ही कहीं पे। तो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू एक्सप्लोर नॉर्थ ईस्ट ऑन समवन एल्सेस एक्सपेंस विच इज द कॉलेज एक्सपेंस। उस पर तुम्हें अपने पैसे नहीं खर्चने पड़ रहे। अपार्ट वैकेशन। फ्रॉम दिस, हाँ हाँ, वो तो वैकेशन। तो इस केस में ये है कि सीआईपी में अच्छा खासा ये वाला वेकेशन मिल जाता है हमें 10 दिन का। और ये फर्स्ट ईयर्स के लिए, फर्स्ट ईयर्स के लिए अराउंड दिसंबर। पहले हमारे लिए सेकंड ईयर में होता था, बट अब फर्स्ट ईयर्स के लिए दिसंबर में होता है। सेकेंड ईयर्स के लिए देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द सीएम बिजनेस प्लान। तो हमारे सीएम साहब काफी ज्यादा मतलब प्रोएक्टिव हैं मेघालय के। वो खुद भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हार्वर्ड से कहीं से तो एमबीए कर कर आए हैं। तो ही इज अ गुड, ही इज अ वेल रेड पर्सन। तो उन्होंने ऐसा किया है कि मेघालय का जितना भी बिजनेस के सिचुएशंस हैं या फिर उनके कुछ बेसिकली लाइव केसेस जो भी चल रहे हैं, वो आई एम शिलोंग के साथ उन्होंने टाइप करवाया सीएम ऑफिस ने। तो सीएम ऑफिस एंड आई एम शिलोंग मिलकर उस पर काम करता है और स्टूडेंट्स को ही इन्वॉल्व किया जाता है उसमें डायरेक्टली। किसी को आप मेंटर ले सकते हो और उसमें आप टीम्स बना के सीएम के साथ डायरेक्टली काम कर सकते हो। और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ से 2 या 3 टीम्स बनी थी। आई एम नॉट श्योर अभी तक उनका कहाँ तक वो पहुंचे हैं क्या नहीं, बट उनका लाइव प्रोजेक्ट चल रहा था। और इट इज़ अ वेरी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसमें ये है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सीएम ऑफिस देख रहा है। तो वो एक अलग ही लेवल का आपको मतलब फन क्रिएट होता है उसमें। आपको गाड़ी ऑफिस गवर्नमेंट की आ रही है, गवर्नमेंट की गाड़ी में आप जा रहे हो आ रहे हो। कुछ लोग अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो वो भी एक अच्छा फन पार्ट है। बट वो सिलेक्शन बेसिस पे है, वो आपका मेरिट बेसिस पे है। दिस इज नॉट विच इज समथिंग फॉर एवरी वन। सीआईपी इज फॉर एवरी वन। वो 400 के 400 बच्चों को चांस मिलता है इन फर्स्ट ईयर। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ इमर्शन प्रोग्राम्स एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स फ्रॉम आवर साइड। तो गौरव, आशीष, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग अराउंड सीआईपी और इंडस्ट्रियल विजिट्स। So, like Saurabh, you said, so similar to what IIM Shillong does with the CM office, IFT के साथ भी the similar thing is with the trade problems that the country is facing. For example, अगर कोई trade related issue है जिसपे we have our very learned professors जो government के साथ continuously काम करते हैं. So in that case, students also get an opportunity. Some students are selected जो Invest India हो गया, या फिर उसके अलावा और different platforms है, projects है जिन पे हमारे professors काम कर रहे होते हैं, तो उसमें काम करते हैं बिकॉज वी आर ट्रेड कॉलेज एंड ट्रेड में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती है. सो वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इट एंड लर्न इट फ्रॉम, लाइक वी गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ इट. सो सिमिलर टू लाइक द वर्क दैट यूर डूइंग विद सीएम ऑफिस, हमारे यहाँ पे भी होता है बट फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू. Even I've heard of some professors in your college. I don't remember his name, and he was directly working with the PM office. मेरे को अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा. I think. हाँ, देर आर मेनी प्रोफेसर्स, लाइक हम्म। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ डॉक्टर राम, प्रोफेसर हम्म। राम. कुछ मतलब प्रोफेसर्स के मैंने नाम सुने हैं. दे आर, आई मीन, ग्रेट प्रोफेसर्स आई वुड से.
तो ये चीज तो We आई have हैव certain देखी है। professors who, starting if you say the presidents and the prime ministers have even praised them for the हम्म। kind of work that they do. So we have यस। certain professors in trade specific domain only. ओके। तो Gaurav, if you would like to add something around this, or shall we go to the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, I'll be bringing the second part of this discussion very soon. It will cover the remaining crucial aspects that can help you make a decision around choosing the right college for you. It can be IIM Shillong, MDI Gurgaon, or IIT Delhi. I'll be sharing the LinkedIn IDs of all three of us in the description box below. You can reach out to us for any doubts. Stay tuned for part two. Thank you for watching part one. We'll see you soon.